हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गुडलीन। आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड्स मिलेंगे। आपको 5 सेकंड में आंसर को सॉल्व करना है। तो अब हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, the stage during which separation of the paired homologous chromosomes begins is. The options are pectine, diplotin, zygotine, or dikinesis. You have 5 seconds to guess. 1, 2, 3, 4, 5. So the correct answer is B, diplotin. Now our second MCQ is, during cell growth, DNA synthesis takes place in. The options are S phase, G1 phase, G2 phase, M phase. 1, 2, 3, 4, 5. So the correct option is A, S phase. The third MCQ is, when cell has told DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? Options are G1S, G2M, M, both G2M and M. 1, 2, 3, 4, 5. So the correct answer is A, G1S checkpoint. Fourth is, in meiosis, crossing over is initiated at. The options are diplotin, pectine, liptotin, and zygotine. 1, 2, 3, 4, 5. So the correct answer is B, pectine. Now the fifth MCQ is, which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? Options are synapses, spindle fibers, disappearance of nucleolus, chromosome movement. You have 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So the correct option is A, synapses. Now next, sixth MCQ is, during which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remain at 4C level if the initial amount is denoted as 2C? Options are G0 and G1, G1 and S, only G2, G2 and M. 1, 2, 3, 4, 5. So the correct option is D, G2 and M. Now next, the seventh MCQ is, in S phase of cell cycle, options are amount of DNA doubles in each cell, amount of DNA remains same in each cell, chromosome number is increased, or amount of DNA is reduced to half in each cell. 1, 2, 3, 4, 5. So the correct option is A, the amount of DNA doubles in each cell. Now the eighth MCQ is, arrange the following events of meiosis in correct sequence. आपको इसको correct sequence में arrange करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइजमाटा, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। अब आपने इन ऑप्शंस को एक इवेंट में कैसा क्या क्या होता है, मियोसिस की कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको इसको सेट करना है। यू हैव 5 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5. सो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। सबसे पहले क्या होता है? साइनेप्सिस, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर टर्मिनलाइजेशन होता है चाइजमाटा का, फिर डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है। देन नाउ द नाइन्थ एमसीक्यू इज, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करने हैं, आपको इसके लिए 10 सेकेंड्स मिलेंगे, आप मैच करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। अब हमें पता है G1 फेज के अंदर क्या होता है, मेरा सेल ग्रो करता है और ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं, डुप्लीकेट करती हैं। तो G1 फेज का क्या ऑप्शन हो गया, फर्स्ट। G2 फेज मतलब एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है और क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं। तो एस फेज का क्या हो गया, सेकंड हो गया। G2 फेज के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, सी का थर्ड हो गया। डी का क्या हो जाएगा, मेटाफेज इन एम फेज, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो G1 ए का फर्स्ट हो गया, बी का सेकंड हो गया, सी का थर्ड हो गया, डी का फोर्थ हो गया। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, फर्स्ट। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन which chromatids and in which stage of cell cycle? Options are non-sister chromatids of non-homologous chromosomes at Picatian stage of prophase 1, non-sister chromatids of non-homologous chromosomes at zygotine stage of prophase 1, non-sister chromatids of homologous chromosomes at Picatian stage of prophase 1, non-sister chromatids of homologous chromosomes at zygotine stage of prophase 1. You have 5 seconds to guess. 1, 2, 3, 4, 5. So the correct option is C. Non-sister chromatids of homologous chromosomes at Picatian stage of prophase 1. 11th MCQ is, which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? Options are option A, condensation, then nuclear membrane disassembly, then crossing over, then segregation, and then telophase. Option B is condensation, nuclear membrane disassembly, arrangement at equator, centromere division, segregation, and telophase. Option C is condensation, फिर arrangement at equator, then centromere division, then segregation, and then telophase. Now tell the correct sequence of events during mitosis. You have 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. The correct option is B. सबसे पहले क्या होती है, कंडेंसेशन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली होती है, फिर अरेंजमेंट एट इक्वेटर होती है, फिर सेंट्रोमियर की डिवीजन होती है, फिर सेग्रीगेशन होता है, देन टीलोफेज आता है। नाउ द लास्ट MCQ इज 12th MCQ. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको अब इसे मैच करना है, आप इसे खुद मैच करें। आपके पास 10 सेकेंड्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ए का क्या आएगा, सिनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ए का क्या आएगा, सेकंड, जाइगोटीन के अंदर हो गया। फिर सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, बी का क्या आएगा, G2 फेज के अंदर होता है ये सब कुछ, सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, बी का क्या आ जाएगा, थर्ड। एक्शन ऑफ इंजाइम रिकॉम्बिनेज, एक्शन ऑफ इंजाइम रिकॉम्बिनेज का एक्शन कब होता है, आपको पता है पिकाइटिन स्टेज के अंदर होता है, तो सी का फिफ्थ आ जाएगा। अब क्या बचा, डी। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट नहीं होते हैं बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, तो इसका क्या आ जाएगा, डी का फोर्थ। सो मेरा करेक्ट क्या बनता है, करेक्ट बनता है ऑप्शन ए का क्या बन रहा है, सेकंड, ए का सेकंड, फिर बी का थर्ड, फिर सी का फिफ्थ, फिर डी का फोर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फिफ्थ एंड डी का फोर्थ। अब हमने इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं नीट के बेसिस पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के कवर कर चुके हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।